ڈاکٹر رشید اشرف صاحب. السلام علیکم. ڈائٹ پر بیٹھے تمام مہمانان، معزز سامعین، عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ وقت کم ہے میں نے بہت شارٹ کر لیا ہے. میرے مطالعہ مت کہیے اس کو، ایک تاثرات، اس کا عنوان میں نے رکھا تھا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. اس کرۂ ارض پر از آدم تا ایدم انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. خالق کائنات نے اپنی اشرف المخلوقات کے لیے اس عالم رنگ و بو کو مختلف وسائل سے آراستہ کیا. انہی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اردو زبان و ادب میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی دانشورانہ صلاحیتوں کے سبب اردو زبان و ادب کی ترقی کے وہ مدارج طے کیے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی خدمات کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. انہی شخصیات میں ایک اہم نام پروفیسر صاحب علی صاحب کا ہے. پروفیسر صاحب علی صاحب ابتدا میں برہانی کالج سے وابستہ ہوئے. اس کے بعد سن 1996 میں ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں تقرر ہوا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 24 سال گزارے، جن میں تقریباً 8 سال صدر شعبہ بھی رہے. پروفیسر صاحب علی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے ادب میں اپنی تنقیدی اور تخلیقی جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں. چونکہ ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل اسی نہج پر ہوئی تھی جس میں ترقی اور تعمیری رجحانات کو فوقیت حاصل تھی، اس لیے اس کا اظہار ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی نظر آتا ہے. انہوں نے شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا. سمپوزیم، مذاکرے، مباحثے اور چھوٹی موٹی نشستوں کے علاوہ ہر سال کم از کم 2 قومی سیمینار برپا کرتے تھے. مخطوطہ شناسی پر 2 اہم ورکشاپ کا انعقاد بھی کیا. سال 2013 میں منٹو پر اور 2018 میں 21ویں صدی میں اردو فکشن پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا، جن میں ہندوستان کی نامور یونیورسٹیوں کے علاوہ ڈھاکہ، جرمنی، ماریشس، نیپال کے مندوبین شامل تھے. پروفیسر صاحب علی نے اردو اور غیر اردو کی بڑی بڑی شخصیات کو شعبے میں مدعو کیا. یہاں عرض کر دوں کہ پروفیسر صاحب علی کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جب بھی کسی اہم شخصیت کو شعبہ اردو میں مدعو کیا، وہ ان کی دعوت پر بخوشی چلا آیا. شعبہ اردو کو ممتاز اور معیاری بنانے کے لیے انہوں نے علیحدہ اور پرشکوہ شعبہ بنانے کی کوششیں کی جو اساتذہ اور طلباء کی تمام ضروریات کا احاطہ کرتا ہو. ان کی اس تجویز کو اردو بھون کے نام سے یونیورسٹی انتظامیہ نے منظوری بھی دے دی اور حکومت مہاراشٹر نے اردو بھون کے لیے 5 کروڑ دینے کا اعلان بھی کر دیا. لیکن باوجود پروفیسر صاحب علی کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. پروفیسر صاحب علی ہندوستان کی کئی اہم یونیورسٹیوں کے علاوہ NCERT، NCPUL اور UGC کی کئی اہم کمیٹیوں کے ممبر بھی تھے. علاوہ ازیں وہ ہندوستان کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ سرسوتی سمان اور مدھیہ پردیش کا سب سے بڑا ایوارڈ اقبال سمان کی جیوری ممبران میں بھی شامل تھے. سرسوتی سمان ابھی تک اردو میں صرف شمس الرحمان فاروقی اور نیر مسعود کے حصے میں آیا ہے. صاحب علی ہندوستان کی 24 زبانوں کے سب سے بڑے ادارے ساہتیہ اکیڈمی، منسٹری آف کلچر دہلی کے اردو بورڈ کے ممبر بھی تھے. پروفیسر صاحب علی کی ایک اہم اور خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی اپنا ادبی سفر ترک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ سلیکشن کمیٹی کا معاملہ ہو، چاہے بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہو یا کسی اور نوعیت کا پروگرام ہو. انہوں نے اردو کی خدمت کا کوئی بھی موقع فروگزاشت نہیں کیا. اردو کے تئیں اپنی محبت کو کبھی مات نہیں پڑنے دیا اور ایک جذبے بے نیازی کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے رہے. پروفیسر صاحب علی کا یہ معتدل رویہ ان کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے. اردو زبان و ادب کے ممتاز مزاح نگار یوسف ناظم یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں یہ جملہ کہا تھا کہ اردو ادب میں تو بختور ہستیاں گزری ہیں جن کے نام کے آگے اور پیچھے تعظیمی الفاظ لگے ہوئے ہیں. ان میں ایک میر تقی میر، دوسرے صاحب علی صاحب. پروفیسر صاحب علی کا حلقہ احباب انتہائی وسیع تھا. جب تک وہ ممبئی میں تھے، ہر کس و ناقص سے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے ان کا ہم عصر ہو یا کوئی عام انسان ہو، سب سے وہ خوش اخلاقی سے ملتے تھے. جہاں تک میرے مشاہدے کا تعلق ہے، میں نے انہیں علم دوست، غریب پرور اور نادار طلباء پر زیادہ مہربان پایا. ان کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اردو اور اردو والوں سے، اپنے طلباء اور ریسرچ اسکالروں سے ایسی محبت کرنے والے افراد فی زمانہ شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں. پروفیسر صاحب علی کو ہم سے جدا ہوئے ابھی کچھ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب بھی انہیں مرحوم لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. دراصل ان کی شخصیت اس قدر دل نشین تھی کہ ان سے بچھڑنے کا تصور بھی تکلیف دہ تھا. تقریباً 15 برس قبل جب پہلی بار میں ان کے سایہ عاطفت میں آیا، اس کے بعد زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے جہاں اس بات کا خدشہ تھا کہ بدن اور دھوپ کی تمازت کو برداشت نہیں کر سکے گا. تبھی شفیق استاد کے دست مبارک نے
اس خدشے کو دور کر دیا اور ہماری زندگی پھر اسی طرح رواں دواں ہو گئی۔ اسی لیے آج جب مختلف مسائل میرے سامنے سر اٹھاتے ہیں تو باپ جیسے مہربان استاد کی محترم کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرتا ہوں اور اشکبار ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے پہلی ملاقات کے بعد عالم مرگ مجھے جس قدر عزیز رکھا اس کا ایک زمانہ گواہ ہے۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ پروفیسر صاحب علی کی جملہ شاگردوں میں میری حیثیت شاگرد رشید کی تھی۔ ساتھ ہی مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی کا پہلا UGC رادھا کرشنن پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلو رہا جو میں نے صاحب علی کی نگرانی میں مکمل کیا۔ پروفیسر صاحب علی کی نگرانی میں ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ، 20 PhD کی تھیسس اور تقریباً 45 MPhil کے مقالے لکھے گئے۔ وہ اردو سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان سے بہت سے شاگرد ممبئی یونیورسٹی اور اس کے مختلف کالجوں، اسکولوں اور دیگر شعبہ حیات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال خود شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی ہے۔ پروفیسر صاحب علی کے شاگردوں میں سب سے نمایاں نام موجودہ صدر ڈاکٹر عبداللہ امتیاز کا ہے، جو نہ صرف صاحب علی کی روایتوں کو قائم کیے ہوئے ہیں بلکہ اپنے اس ورثوں کو سنبھالے ہوئے ہیں جو انہیں اپنے استاد محترم پروفیسر صاحب علی سے ملا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ امتیاز کے علاوہ ڈاکٹر قمر صدیقی، ڈاکٹر مزمل سرفوز، ڈاکٹر احراز آدمی اپنے استاد مرحوم صاحب علی کے نقش قدم پر گامزن ہیں، جو طلبہ اور ریسرچ اسکالروں کی بھلائی نیز شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ مختصر یہ کہ شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی کے فروغ میں پروفیسر صاحب علی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مستقبل قریب میں جب بھی شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی کی تاریخ مرتب ہوگی، اس تاریخ کے اوراق لالہ و گل پر پروفیسر صاحب علی کا نام خوشبو سے لکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رشید اشرف صاحب۔ اب میں عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ محمد شاہد صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ جناب صدر، مہمانان کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے رشید اشرف صاحب کی طرح کوئی مقالہ تو نہیں تیار کیا ہے۔ میں صاحب علی صاحب کے بارے میں اپنے دیرینہ تعلقات کو بتانے کی کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صاحب علی صاحب طلباء کے لیے کیسے تھے اور اپنے دوستوں کے لیے کیسے تھے۔ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، کوئی ماضی کے جھروکوں سے صدا دیتا ہے، کوئی ماضی کے جھروکوں سے صدا دیتا ہے، سرد پڑتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، سرد پڑتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، کسی بچھڑے ہوئے کھوئے ہوئے ہمدم کا خیال، کسی بچھڑے ہوئے کھوئے ہوئے ہمدم کا خیال، کتنے سوئے ہوئے جذبوں کو جگا دیتا ہے۔ صاحب علی صاحب سے میری پہلی ملاقات 20 جون 1994 کو برہانی کالج کی لائبریری میں۔ برہانی کالج میں یہ میرا پہلا دن تھا اور ایز اے لیکچرر میں نے 20 جون 1994 کو جوائن کیا۔ اس کے بعد میں مجھے ٹائم ٹیبل ملا اور ٹائم ٹیبل ملنے کے بعد جب کچھ کتابوں کی تلاش میں لائبریری جب پہنچا تو صاحب علی صاحب سے میری ملاقات، تعارف ہوا، جان پہچان ہوئی اور اسی دن سے ہمارے اور ان کے بیچ میں کافی قربت ہوئی۔ ہم لوگ ساتھ میں ہی اکثر گزارتے، لنچ تو اکثر ہم لوگ ساتھ ہی میں کرتے، خاص طور سے
जुमा के दिन हम लोग करते थे, जुमा की नमाज पढ़ते थे साथ में, फिर लंच करते थे और काफी वक्त कभी कभी हम लोग यूनिवर्सिटी भी साथ में आते थे। बहुत ही मुखलिस इंसान, इतना मुखलिस कि ढूंढने से नहीं मिल सकता। बच्चों की कदर पे रहनुमाई करते हैं, खास तौर से उन्होंने अपने आप को बच्चों के लिए डेडिकेट कर दिया। मुझे याद है कि जब हम लोग आए थे तो लोग यूजीसी और नेट नहीं जानते थे, ये होता क्या। उसी जमाने में नेट की शराइत को कॉलेज में अपॉइंटमेंट के लिए कंपल्सरी करार दिया गया। सब लोग भागते फिर रहे थे। साहब अली साहब ने कई पेपर में उसका जो प्रोसीजर है उसको लिखा, उसके बाद में बच्चों का एक ग्रुप बनाया, उनको तैयार किया और कई बच्चे कामयाब। 3 बच्चे तो एक साथ में नेट और जियारत कॉलेज में, ये उनकी कोशिश की पहली कोशिश। फिर वो बुरानी कॉलेज से मुंबई यूनिवर्सिटी आ गए। मैं भी अक्सर यहाँ लेक्चर लेने के लिए आया करता था, बगैर उनसे मुलाकात किए हुए मैं कभी गया। बहुत मुखलिस इंसान, बहुत ही मुखलिस इंसान। खास तौर से बच्चों के लिए तो वो मतलब इतना ज्यादा मेहरबान थे और इतनी ज्यादा उनकी मदद करते थे कि आउट ऑफ वे जिसको कह सकते हैं कि वहां से जाकर के भी बच्चों की मदद करते। और मदद का दायरा महदूद नहीं था, हर तरीके से मदद करते थे, तालीमी एतबार से हो चाहे माली एतबार से हो, और अच्छे अच्छे मशवरों से नवाते थे ताकि बच्चे करके काफी का आगे बढ़े। मैं जब यहाँ यूनिवर्सिटी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो उसने इत्तेफाक दे कि वही सदर शोबे अरबी भी थे, उन्हीं के दस्तखत से मैंने ज्वाइन किया। जिस दिन मैं ज्वाइन कर रहा था उन्होंने कहा कि जितनी खुशी तुमको हो रही उससे ज्यादा मुझे खुशी है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कह लेकिन आप ही हो, इसलिए दुआ के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला करबट जन्नत नसीब करता और भाभी और उनके बच्चों को सब्र दे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ उस शख्सियत से कि जिन्होंने उनके शागिर्द होने का शर्फ हासिल किया है, साथ ही वो उनके जानशीन भी मुकर्रर हुए। शोबे उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला इम्तियाज साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। प्रोफेसर साहब अली साहब पे कुछ इजहार ख्याल करना हम लोग की बड़ा मुश्किल काम है, और मैं बताऊं सही तो ये है कि उनके जाने के बाद उसका एहसास बहुत शिद्दत से हम लोग को इस बात का एहसास हुआ कि सर की कमी हम लोगों को जगह जगह महसूस हो रही है। एक काम सर ने बहुत अच्छा जो उसने किया कि एक टीम वर्क करके चले गए।
आपने देखा होगा जो मेरे साथ काम कर रहे हैं आधे से ज़्यादा उनकी शादी, तो हम लोग की ट्रेनिंग पहले से भी थी। और सर ने मुझसे नहीं कभी किसी से कहा था कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँगा तो पीछे, कि सर से हमारा जो ताल्लुक कायम हुआ, ये पहली मुलाकात वो सितंबर 2004 में हुई मैडम के घर पे, PhD रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में। तो JRF हो गया था मेरा, उसी सिलसिले में सर से बात करना था क्या करना है। तो वो भी पहले मैं भी नहीं जानता था, लेकिन ये है कि हमारे भाई ने फ़ोन किया डॉक्टर अब्दुलरहमान ने कि सर हमारे भाई का JRF को PhD करना चाह रहे हैं। तो वो नहीं जानते थे कि सर गाइड हुए, तो उनका कि मैं सोचा हूँ कि जी नावरे साहब से आप बात करें। तो उनका नहीं, मैं खुद ही गाइड हो गया। तो उस सिलसिले में मैं मेरी घर की उससे मुलाकात हुई थी। 11 अप्रैल 2005 को बाकायदा रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। और अगस्त 2010 में उनके अंदर भी उसको PhD अवार्ड हुई, उर्दू और हिंदी के अदबी नावलों का तकादमी का आज़ादी के बाद। और फिर उसके बाद 2012 में एज ए कलीग मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ज्वाइन किया। उससे पहले जो है गेस्ट टीचर की हैसियत से 3 साल काम किया मैंने। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये तकरीबन 16 साल का सफ़र होता है, क्योंकि सर का इंतकाल 24 जनवरी 2020 को हुआ और वो लंबा एक सफ़र था। तो 16 साल में मैं उनके यहाँ फिर उनके साथ जो है शादी के हैसियत से भी जुड़ा रहा, कलीग के हैसियत से भी रहा। लेकिन मैंने इतना शरीफुन्नफ्स आदमी नहीं देखा मैंने ज़िंदगी में, और सब तो आखिरी था। और मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट से में अगर सर से कभी किसी के हाथ पाँव होती थी, मुझसे हो जाती थी, अक्सर कभी कभी हो जाती थी। लेकिन ये है कि शाम को जाते जाते सर का ज़रूर ये आवाज़ देना कि सर का कमरा किनारे था, जब वहाँ निकलते अरशद बिल्ला चलता हूँ, अरशद अब्दुल्ला चलता हूँ। तो ये चीज़ें सारी मतलब उस पर पानी फेर देता था। और सर का ये बड़कपन था, मैं इतना ज़मीनी आदमी मैंने नहीं देखा कि इतना मतलब कभी। और कोई भूल जाते थे, सबसे अच्छी चीज़ खुद कहते भी थे कि कोई बर्दाश्त मैंने इतना नहीं देखा कि कोई भी चीज़ होती भूल जाते थे कि क्या क्या बात हुई, क्या कभी क्या हुआ, कोई काम था। हालांकि उससे पहले ही हमारा कुछ हुआ है, लेकिन कभी भी नहीं। और दूसरी चीज़ जो है, 2 वजह से ज़्यादा मुझसे खुश रहते थे और कहते थे, और ये मीटिंग में भी कई बार कहा कि अब्दुल्ला एक तो सबसे अच्छी चीज़ तुम्हारी यार कि वक्त की पाबंदी, तुम्हारे यहाँ तुम वक्त पे आ जाते डिपार्टमेंट। और दूसरी चीज़ ये कि तुमको कोई काम तो काम फ़ौरन हो जाता है, इंतजार नहीं करना पड़ता है। अक्सर वो मीटिंग में भी कहा करते थे ऐसा नहीं कि जो है। देखिए किस्मत का या कहीं उससे इत्तेफाक देखिए कि जो 23 जनवरी की रात शाम, ये मगरिब का वक्त था, मेरी आदत में मगरिब पढ़ के निकलता हूँ। तो 6 सवा 6 बजे के आसपास इत्तेफाक मुझे ऐसा था कि शायद लोग पहले जा चुके थे, हम और सर थे। सर अपने केबिन से निकले तो मुझसे कह रहे कि अब्दुल्ला यार मैं चाह रहा था तुम्हारा नाम RRC में डाल दूँ, तुम्हारे अंदर में कितनी PhD है। मैंने कहा कि अभी कोई PhD नहीं है। तो यार ये लोग कैसा रूम बना देते हैं कि PhD का। मैं कहा कि मैंने मैडम के अंदर PhD तो मेरे अंदर में थी। मैं अच्छा उनको बात करके बताता हूँ। तो मैं मगरिब पढ़ के निकलता हूँ, लेकिन मैं कहा एक काम करिए सर कि चलिए मैं भी चलता हूँ। बात करते करते तो हम लोग की आदत थी, सब लोग स्टाफ में निकलता था। वो जो चौराहा है उसको हम लोग मंकी चौराहा या बंदर चौराहा कहते थे, वहीं पर हम लोग भले डिपार्टमेंट दिन भर रहे साथ में, लेकिन वहाँ रुकना ज़रूरी था। तो वहाँ बड़ी बातें होती हुई और हुआ। और एक चीज़ और उससे पहले बता दूं कि आखिरी सेमिनार भी सर ने हमारे ही साथ पढ़ा था, सदारत में मैंने पेपर पढ़ा था, वो हुआ था हिंदुस्तानी प्रचार सभा में, हाँ अदब व एहतजाज पे। तो वो आखिरी सर का सेमिनार था। और फिर उसके बाद जो है ये आखिरी मुलाकात मेरी। अच्छा ये देखिए, फिर अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी में 11:59 की ट्रेन रहमान भाई वहाँ से पकड़ता था मीरा से, वो ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। तो अनिल बंकर साहब जो हमारे उमासा के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका फ़ोन आया, बोला सर को चोट आ गई है, सर आप कहाँ हैं। तो मैं कहा मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे हूँ, तो सर जल्दी आए। मैं ये समझ रहा कैसे गिर उठ गए होंगे तो चोट लग गई होगी, मतलब चूँकि BP भी हाई रहता है या उनके सामने घर के सामने आने की मैंने इतना ध्यान दिया। फिर 10 मिनट बाद उनका फ़ोन आया कि सर आप फ़ौरन आइए, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्योंकि मैं सोचा आस पास का हॉस्पिटल में शायद देख गए। तब मतलब उसको एकदम मतलब शॉक्ड रह गया कि ये क्या है मतलब। अब उसके बाद सोचिए, फिर मेरा अंदाज़ा है कि मैं कांदीवली के आसपास था, पूरा 17 मिनट का ड्यूरेशन था, कांदीवली के आसपास था। तो इंतकाल सर की बैड न्यूज़ है, सर का इंतकाल।
मतलब इतना शौक था मैं, मतलब फिर उसके बाद मैंने सबको फ़ोन किया, हिम्मत नहीं थी कि मतलब किसी को फ़ोन करके खबर दे, एकदम शॉकिंग था। और पूरे हिंदुस्तान में एक तरह वो हंगामा हो गया, मतलब शोक में डूब गए कि भाई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल हम लोग बांद्रा वहाँ हॉस्पिटल में गए, वहाँ बहरहाल ये एक वो था। लेकिन डिपार्टमेंट में सर को मैंने देखा, कभी आज तक मतलब 16 साल में सर को मैंने ये नहीं सुना यार आज बहुत थक गया हो यार, कभी नहीं सुना, कभी उनको सुना ही नहीं। उर्दू के काम के लिए, किसी भी काम के लिए मुझे हमेशा तैयार रहते, ये नहीं कि कभी उन्होंने कुछ किया हो। और एक बात हमेशा हम लोग को तंबीह जो करते थे, कहते थे भाई कि उर्दू का काम घड़ी देख के नहीं होता, ये हमेशा आज तक उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। और वो ये कहते थे कि हमेशा पूरी यूनिवर्सिटी में आप जाके आज भी देख लीजिए कि सबसे लास्ट में अगर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी बंद होता तो शोबे उर्दू, और ये सर की ही तरबियत का नतीजा है। आज भी हम लोग को अगर 5 साढ़े 5 में निकलते हैं, पर वाहिद कोई कोई टीचर निकल गया किसी काम से तो अलग है, तो हम लोग की सबकी आदत है कि हम लोग सबसे आखिर में ही जाते हैं। और ये कोशिश होती है कि शोबे का काम रुकने ना पाए। जहाँ से ये भी देखिए हमारे सामने डॉक्टर कमर सिद्दीकी बैठे हुए हैं, रात साहब और दूसरे लोग 2-2 बजे 3-3 बजे रात में हमने पेपर बनवाए हैं कोविड के ज़माने। ये बहुत, और ये मैं बताऊँ कभी किसी ने खड़ी नहीं देखा, कह रहे सर क्या ड्यूटी समझाओ। शोबे उर्दू को हर आदमी अपना घर समझता है, कोई यहाँ जितने भी स्टाफ है, और यही मर्तबा सर के वक्त में भी हासिल था और भी है। और मैंने पूरी वो कोशिश की कि सर के वक्त में आज तक कोई बता दे मैंने डिपार्टमेंट से किसी को निकाला, कभी नहीं निकाला। ये सर की तरबियत का नतीजा, ये सर भी यही काम करते थे। हमें जो अपने शरह के बात अलग, हमने कोई बता दे कि हमें किसी को किया, और न उनके साथ कोई ऐसी बदसलूकी की हो या कभी उनके साथ ज्यादती की हो, कभी नहीं ऐसा। ये सर की तरबियत का ही नतीजा है, और उसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो शोबे का हो, उर्दू का हो, कोई और है, बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेते हैं। और इत्तेफाक हमारा मतलब जो स्टाफ है इस वक्त टीचिंग स्टाफ, मैं सबकी मतलब समझिए कि तारीफ करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी काम के लिए किसी से कह दीजिए, कोई ये नहीं कि सर ये मेरा नहीं है, मैं जाने का टाइम हो गया, सर मैं थक गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा असर जो है डॉक्टर कमर सिद्दीकी, उनको रात में 9 बजे बैठा दीजिए, 10 बजे बैठा दीजिए। जब तक रशीद अशरफ खान थे, हमारे वक्त में नहीं, लेकिन जब यहाँ थे मेरे वक्त में तो नहीं थे ये, लेकिन इनकी भी यही आदत थी। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में कभी डिपार्टमेंट के काम में कोई हटा नहीं, भागा नहीं। ये सर की बहुत बड़ी होता है। और अभी रशीद ने अपने उसमें मकाले में जिक्र किया, आज मुंबई उठा के नहीं, मैंने वो ज़माना भी देखा है शोबे का, जिस वक्त मैं जियारत था 2005 मैंने ज्वाइन किया था, पता ही नहीं था कि शोबा खुलेगा कितने बजे। एक साइन देने के लिए इतनी परेशानी होती थी कि आप फ़ोन भी नहीं कर सकते कि साहब या आपके डिपार्टमेंट का टाइम क्या हो भी नहीं मालूम। आते थे बैठे, कभी कभी तो ये भी होता था दिन भर बैठे चले आते, बैठे कहाँ, सारा रूम लॉक, अब बैठेंगे कहाँ है, अब बैठे रहिए। साइन तो जब सर आए, सर के तो उसमें सर के साइन तो हो जाती थी, सर के यहाँ ये छूट थी कि आप घर पे चाहे इनकी चाहे डिपार्टमेंट, वो ये कहते थे जब भी आप फ़ोन करता था कि मैं कभी हूँ नहीं हूँ, इतना ख्याल होता था कि यहाँ परेशानी न हो, तो ये ख्याल करते थे। अब जब हेड के साथ सिग्नेचर लेनी होती थी तो बहुत बड़ी मुसीबत, कभी 3-3 दिन लग जाता था, आप फ़ोन नहीं कर सकते। अब तो बहुत आसानी है, तो बच्चे डंडे से आते हैं ऑफिस में। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि साहब कि हम इनके गुलाम, इस तरीके के भी बहुत से बर्ताव करते हैं। फेल हो गए उसके भी जिम्मेदार हम ही होते हैं, सर मैं फेल हो गया, ऐसे कैसे फेल हो गया, मैंने लिखा था पेपर। हाँ, तो अब उसकी भी जवाबदेही हमारी है कि आप फेल हो गए, मैं क्या करूँ उसमें, लेकिन ये तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। लेकिन ये सर का जो पूरा देखा जाए, जो 16 साल का सफ़र, आज पूरा मुंबई देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, चाहे कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें सर के शागिर्द न, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, और बहरहाल ये सिलसिला आगे भी मुंबई से शोबे उर्दू मुंबई सिटी में भी लोग आए, लेकिन पूरे शहर में स्कूल से लेकर कॉलेज तक इस सर की तरबियत का नतीजा, हर बच्चा उनको अपना समझता, सबसे बड़ी खूबी। और ये है कि सर के जाने के बाद हम लोग को कदम कर रही, मैं सर का वही पोस्टर देख रहा था, आज ये जश्न देखते वो देखते तो कितना खुश होते। अभी पहला सेमिनार हमने अभी किया सर की गैर मौजूदगी में 7-8 फरवरी को, बहुत उनकी याद है। कभी कभी दिल कचोटता है कि यार वो अगर सर होते तो, मतलब सरपरस्ती का भी होता है कि
सर की सरपरस्ती, हम सब एक एज के पड़ जाते हैं। सर की क्या है, बड़े लोग जो बात कह देते थे सारे लोग मानते थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये कह दे कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे। तो ये सर बहुत अच्छी चीज़ थी। मैडम भी हमारे सामने हैं, मैडम से भी उस दौरान कई बार घर पे आना जाना हुआ और बड़ा मतलब लगाव था इस फैमिली से, फैमिली रिलेशन बन गया था इतने सालों में। और जो मुझसे बन पड़ा शोबे की सतह पे या पर्सनल, रीमा भी बैठी हैं, उनके बेटे अनस भी बैठे हुए हैं, मैडम भी है। मैंने तब भी कहा था कि जो भी शोबे या मेरा कोई खिदमत हो ज़रूर आप याद करें, ऐसा नहीं कि सर नहीं है तो आपको कोई परेशानी हो जाए, वो कहने भी हैं। और आज भी कह रहा हूँ कि मैं या मेरा शोबा या मेरे शोबे के लोग अगर आपके कहीं किसी काम आ सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। शुक्रिया। सर ने जो तंजीम और तरतीब अदारे में कायम की, अल्लाह उसे कायम रखे और इसी तरह शोबे उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी तरक्की की राहों पर गामजन रहे। मैं आवाज़ देती हूँ प्रोफेसर शाहिद नौखेज साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। उम्रहा दर काबो बुतखाना में नालत हयात ताज़ बज़्म इश्क एक दाना राज़ाए करूँ। ये दुनिया का वसूल है या दुनिया की यही कहानी है कि इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, वजूद पाता है, वरूज पाता है और फिर अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। लेकिन उसकी सिफात, उसके कारनामे न सिर्फ ये कि जिंदा दिलों में जिंदा रहते हैं बल्कि मुर्दा और को भी जिंदा किए रहते हैं। साहिब अली साहब के बारे में अगर बहुत मुख्तसरन कहना हो तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वो सलाहियत और सालेहियत के पैकर थे। आप उनसे बासलाहियत आदमी पा सकते हैं, उनसे सालेहियत आदमी पा सकते हैं, लेकिन इस तरह का पैकर आप नहीं पा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत काबिल होते हैं, लेकिन जितने काबिल होते हैं उससे ज़्यादा एहसास होता है काबिल होने का। उसी तरह कुछ लोग बहुत परहेजगार होते हैं, लेकिन जितने परहेजगार होते हैं उससे ज़्यादा परहेजगार होने का एहसास होता है। लेकिन साहिब अली साहब की शख्सियत ऐसी थी कि ये तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी, लेकिन किसी भी चीज़ का एहसास उनको नहीं था। वो अपने खाकसारी से, अपनी इंतसारी से, अपनी परहेजगारी से एक ऐसी दुनिया आबाद किए हुए थे जो उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेहद शुक्रिया। एहसास अमल की ये चिंगारी हम सब में बेदार हो जाए, इस दुआ के साथ मैं अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा प्रोफेसर अहमद महफूज साहब को आवाज़ देती हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। सदर मजलिस, शहनशीनान ग्रामी और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये सिम्पोजियम या जो ये मुज़ाकरा है, ये जिस शख्सियत के बारे में है, उनके औसाफ़ हमीदा, उनकी ज़िंदगी, उनकी इंसानी खूबियाँ, जो लोग उनके बहुत करीब रहे हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त, ये लोग जिस तरह बयान कर सकते हैं और किया है बयान, उस तरह तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि साहिब अली साहब की जो इल्मी शख्सियत थी, उनके जो इल्मी काम है, उन पर तो ज़ाहिर की अलग से मौका हो। लेकिन अक्सर लोगों ने जो ये कहा कि इंसानी जो बहुत ही गैर मामूली इंसानी खूबियाँ जो बहुत खाल खाल नज़र आती हैं, उन खूबियों का वो गोया पैकर थे। और इसका तजुर्बा मैं अपने को इस मामले में खुशनसीब समझता हूँ
کہ صاحب علی صاحب سے ظاہر ہے کہ اس طرح کا تعلق ہے جیسے شاعری کا ہوتا ہے یا اس یونیورسٹی سے اس طرح کا تعلق نہیں تھا. اس کے باوجود جس طرح کی محبت، جس طرح کی شفقت اور جس طرح کی اپنائیت کا مظاہرہ وہ کرتے تھے اس ناچیز کے تئیں، اسے میں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اور خاص طور سے ایسے زمانے میں جو ابھی شاہد نوفل صاحب نے کہا کہ آج کے زمانے میں عز اور انکسار تو جیسے ارقا ہو گیا کہ جو کچھ نہیں ہوتا اس کا الٹا بالکل ہوتا ہے کہ بہت اظہار کرتے ہیں لوگ. صاحب علی صاحب جیسا کہ ابھی رشید اشرف نے اپنے مقالے میں کہا کہ کتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اپنا کیریئر انہوں نے گزارا، اتنی بڑی بڑی علمی اور اکیڈمک باڈیز کا حصہ رہے کہ ایک دو جگہ بھی اگر آدمی آ جاتا ہے تو اس کا اتنا اظہار کرتا ہے یا اتنا احسان جتاتا ہے یا اس کے ذریعے سے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو بار بار. لیکن صاحب علی صاحب کے مطلب مجھے بھی کئی سیمیناروں میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، کبھی ان کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ صاحب میرے وجہ سے ان کو یہ چیز مل گئی. یہ آج کے زمانے میں یہ صفت اتنی مطلب غیر معمولی کہنا چاہیے، اتنی غیر معمولی ہے کہ شاید اکا دکا لوگوں میں یہ چیز ہو. اور یہ ممبئی یونیورسٹی کا شعبہ ظاہر کہ یہاں صاحب علی صاحب کے آنے سے پہلے بھی بڑے لوگ تھے یہاں، قابل ذکر بہت غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے، جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے بہت بزرگ یونس العسکر صاحب، دلوی صاحب ابھی موجود ہیں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. لیکن میں یہ بات کسی اور مطلب کسی کی تخفیف قدر کے مقصد سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے خود یہ احساس، میرا تجربہ یہ ہے کہ ممبئی یونیورسٹی کا شعبہ اردو تمام اردو دنیا میں صاحب علی صاحب کے زمانے کے دوران جتنا مطلب وہ پاپولر ہوا ہے یا یونیورسٹی کے بارے میں ہم لوگ خود اس زمانے میں، جس زمانے میں صاحب علی صاحب یہاں شعبے میں آئے ہیں ظاہر کی 1994 یا 96 میں، تو میں اس وقت JNU میں ریسرچ کر رہا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا میرا. اور اس کے بعد پھر جب میں جامعہ آ گیا ہوں اور اسی زمانے میں کچھ ہی عرصے کے بعد صاحب علی صاحب یہاں پروفیسر مقرر ہو گئے. اس کے بعد سے شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی کے تعلق سے جیسا کہ بھی ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف طرح کے سیمینار، مختلف طرح کے کام. تو یہ چیز جو ہے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا کہ ہر شخص ہر صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا. کچھ لوگ علمی لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت وقی ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کے اور انتظامی جو امور ہے یا انتظامی جو صلاحیت ہے اس کے معاملے میں بہت کمزور ہوتے ہیں. صاحب علی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر تو یعنی میں تو بلکہ ممبئی یونیورسٹی میں پہلی بار انہی کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا، اور اس کے بعد پھر کئی موقعوں پر کئی سیمیناروں میں یہاں آنے کا اتفاق ہوا. اتنی اپنائیت سے، اتنی محبت سے جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ یہ رسمی اظہار کر رہے ہیں، اور ایک ان کے اندر یہ تھا کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ بالکل جیسے اپنے ہمیں کوئی آپ نے یہ کر لیا، کھانا کھا لیا، یہ ہو گیا، سیمینار میں لوگ آئے، وہ ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اس طرح کے شعبے ہمارے جامعہ بھی ایک دو بار گئے وہاں یا سیمیناروں میں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویژن کی بات ہوتی ہے، سیمینار اور مذاکرے کانفرنس بہت منعقد ہوتے رہتے ہیں. یہ بات میں نے صاحب علی صاحب وہ جو محمد علوی پر سیمینار کیا تھا تو اس سیمینار میں آنے سے پہلے فاروق صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے اسی میں نے ذکر کیا کہ میں ممبئی جاؤں گا، کیا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں محمد علوی پر سیمینار ہو رہا ہے. جیسے میں نے یہ کہا تو فاروق صاحب بہت شوق کہ اچھا علوی پر سیمینار، ارے بھائی صاحب علی صاحب یہ تو بتائیے آج کے زمانے میں. اور یہ بات صحیح ہے کہ محمد علوی جس نسل کے ہماری جدید شاعری جس نسل سے ان کا تعلق تھا، محمد علوی ہی نہیں بلکہ اور کئی شعراء ہمارے ایسے ہیں جن پر بڑے سیمینار یا بڑے علمی مذاکرے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ محمد علوی پر یک روزہ کو بھی سیمینار نہ ہوا ہوگا اس سے پہلے جہاں تک جوانی میں. لیکن صاحب علی صاحب کا یہ ویژن دیکھیے کہ انہوں نے محمد علوی پر بہت عمدہ سیمینار کیا. اور جب
मैंने ये बात उनके सामने बताई भाई, फारूक साहब ने जब सुना तो बड़ी बहुत वो उन्होंने खुशी का इजहार किया, तो जाहिर है कि मुस्कुरा के रह गए। ये बात जो है ये वैसे चाहे बहुत बड़ी बात न लगती हो, लेकिन अगर आप ये गौर करें कि ऐसा शख्स जो इतने बड़े शहर में एक यूनिवर्सिटी के शोबे में, बहुत से शोबे हैं, लेकिन हमको मालूम हो जाता है कि किस शोबे में किन मौजूदात पर सेमिनार होता रहेगा या किन मौजूदात को वहाँ ये होता है। तो इस मामले में फिक्शन पर सेमिनार किया यहाँ और बहुत सी चीज़ें। तो मैं तो वाकई जब उनका जिस तरह इंतकाल हुआ है, जिसे मर्गे नागहानी जिसे कहते हैं, कि आदमी सोच नहीं सकता था। जैसे अभी अभी बिल्कुल एक ताज़ा वाक़या हमारे उर्दू दुनिया में बहुत मारूफ शख्सियत इब्न कौल साहब का भी ऐसे हुआ, और बिल्कुल यही सूरत साहिब अली साहब की है। उसमें जाहिर है कि आप लोगों ने, आप जो लोग उनके साथ रहे, मैं बता रहा हूँ कि चंद मुलाकातों या इस तरह से फ़ोन पर जब बात होती थी तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे इतने करीब, इतने क़ुर्बत, इतनी वो है शफ़क़त है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो और बड़े बड़े लोगों को इस शोबे में उन्होंने बुलाया, और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया कि जिनके बारे में आदमी शायद सोच भी नहीं सकता था कि वो भी सेमिनार में आएंगे। और ये शोबा उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जो पूरा टीम वर्क है, कमर सिद्दीकी साहब उस ज़माने में, रशीद अशरफ साहब हैं, अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब हैं, और सब लोग हैं। तो इन लोगों को सब मिला करके यूनुस अगास्कर साहब को पहली बार मैंने यही देखा, इसके पहले उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैं तो वाकई बहुत, लेकिन आखिर में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो जो कहते हैं ना कि नामे नेके रफ्तगां ज़ाय मकुन। अब हम उनकी काम की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं घर की तरफ। मेरा इशारा मसरत साहिब अली साहिबा की जानिब है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हमसे कुछ गुफ्तगू करें। मुहिब्बानी उर्दू और मुहिब्बानी साहिब अली, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले जब कमर सिद्दीकी साहब ने मुझे कहा कि हम एक बड़ा प्रोग्राम जश्न उर्दू कर रहे हैं, उसमें साहिब अली साहब पर एक सिंपोजियम भी करेंगे, तो मैं चौंक गई कि जश्न और याद रफ्तगां क्या ताल्लुक होगा। जश्न उर्दू में तो जश्न ही जश्न होगा। हमेशा उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहते थे कि भाई देखो, ये देखो, ये IAS ऑफिसर बन गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़े होगे, कुछ बनोगे, तो मैं और तुम्हारी अम्मी भी इसी तरह तुम्हारे लिए मुबारकबाद पेश करते हुए बड़े फख्र से स्टेज पर आएंगे। मैंने उन जैसा नस्तालिक आदमी नहीं देखा। खुश लिबास तो थे ही, मुनकसिरुल मिजाजी कूट कूट कर भरी हुई थी। अलीगढ़ की तरबियत ने उन्हें एक बहुत ही अजीम शख्सियत बना दिया था। अलीगढ़ में रहते हुए उन्होंने कई साल तालीम हासिल की, और वहाँ की पूरी तहजीब लेकर वो जब बम्बई में वारिद हुए तो बम्बई के उर्दू डिपार्टमेंट को वैसा ही ऊंचा लाने की कोशिश करते रहे। अपने तलबा की जब वो इस्लाह करते थे, तब कभी कभी मैं भी कहती थी कि ये इतना पढ़कर आप काम क्यों कर रहे हैं। मैं कहती थी कि भाई ये काम उन्हें दीजिए ना, आप सिर्फ सर्कल बना दीजिए, कहाँ गलती है वो निशानदेही कर दीजिए। लेकिन नहीं, साहिब अली साहब तो उनके लिए तड़पते रहते थे, मरते रहते थे। साहिब अली साहब अपनी बहनों, घर वालों के लिए भी एक मीनार नूर थे। बड़ी बहनें हों या छोटी बहनें हों, लेकिन हर एक को उन्हीं का मशवरा मानना था। उनका जो कहना होता था हर्फ आखिर, उसके बाद ना बड़ी बहन कुछ कह सकती थी, ना अम्मी कुछ कहती थी। आज भी मेरी सास जिंदा हैं, हमेशा याद करती हैं कि अपने जवान बेटे को मैंने खो दिया। हालांकि साहिब अली साहब की इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 57 साल थी, लेकिन फिर भी वो पुरजोश थे। इतने जोश और जज्बे से वो काम करते थे कि देखते ही बनता था। और मुझे ऐसा लगता है कि काश अल्लाह ने हमें मरने के बाद भी फ़ोन की सहूलत दी होती कि हम अपने जाने वालों से बात कर पाते। और साहिब अली साहब की करवट अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत फरमाए। उनके बच्चों के लिए जो उन्होंने ख्वाब देखा है वो ख्वाब पूरा हो। मैं मशकूर हूँ उर्दू डिपार्टमेंट, उर्दू चैनल और आप सब की, कि आप सब साहिब अली साहब की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए। हैदराबाद से आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं,
अंदुले साहब तशरीफ़ लाए हैं। उमर सिद्दीकी साहब उर्दू चैनल के रूह रवां बहुत ज़माने से साहिब अली साहब के साथ रहे हैं। उन्होंने अपनी दोस्ती का एक तरह से अपनी शागिर्दी का हक अदा कर दिया। अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब हर मौके पर मुझे भी याद करते हैं, तो मैं बहुत मशहूर हूँ। जाते जाते आप सबके लिए शुक्रिया का एक शेर कहना चाहूँगी। कहता है साज़ दिल का हर एक तार शुक्रिया, कहता है साज़ दिल का हर एक तार शुक्रिया, 100 ज़बान से आपका 100 बार शुक्रिया।